Assalamu alaikum, dear viewers. I hope you all are fine and doing well. Well, this is Shahzad Hassan, and today our topic for discussion is criticism of the naturalistic and interpretive approaches, postmodernism and post-structuralist perspective, subjectivity and objectivity in educational research. In today's lecture, we are going to discuss all these things in details. First of all, we will discuss interpretive approach and naturalistic approach, and then we will move toward criticism. First of all, we should be clear about what is interpretive approach. So here is a brief, description of the interpretive approach. Well, it is developed by German socialist Max Weber and German philosopher William Goethe as an alternative to positivist social science. What positivist would believe, positivist would believe that the only valid knowledge is the knowledge gained through scientific method. लेबॉर्ट्री प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से जो नॉलेज हम हासिल करते हैं, दैट इज़ द ओनली वैलिड नॉलेज इन द वर्ल्ड. दैट इज़ व्हाट पॉजिटिविस्ट वुड बिलीव. बट interpretive approach, it's a kind of an alternative to the positivist, right? Well, interpretive social science is related to explication. अब एक्सप्लिकेशन का क्या मतलब है कि जब हम किसी चीज़ की डिटेल रीडिंग करते हैं, क्लोज रीडिंग करते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स डीप, टू डिग इट डीप एंड टू अंडरस्टैंड इट, राइट. एनालाइज करते हैं लिटरेरी वर्क को इन ऑर्डर टू रिवील इट्स मीनिंग. एंड दीज थिंग्स आर नॉट एब्सोल्यूट, राइट. It does not have a single interpretation. That's what interpretive approach believe. As you can see that each readers bring his or her explanation and subjective experience to the text. It is not necessarily for every readers that they would come up with same interpretation. ज़रूरी नहीं है कि जो मैं रीड कर रहा हूँ, जो मुझे समझ आ रहा है, वो दूसरे को भी सेम उसी तरीके से समझ आए. बल्कि टेक्स्ट सेम होता है, लेकिन देयर आर मल्टीपल वॉइसेस, वी हैव मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, राइट. इंटरप्रेटिव सोशल साइंस वाले बिलीव करते हैं कि इफ़ इट मेक्स सेंस टू द रीडर देन इट्स फाइन, ठीक है, चलता है, राइट. Well, what is naturalistic approach? Naturalistic approach is non-experimental. ये हम laboratory में नहीं करते. This is non-experimental, but it is more like an observation, right? It's primarily qualitative research method in which organisms are studied in their natural settings, like behaviors or other phenomena of interest are observed and recorded by the researcher. हम कोई laboratory वगैरह का यूज़ नहीं करते इसमें, right? This approach is used for field study or research conducted outside the laboratory. As you can see, इस research में हमारे पास laboratory का इस्तेमाल नहीं होता, but it's all about observation, right? It's naturalistic approach. Before moving to criticism, first we should understand that what criticism mean. The expression of disapproval of someone or something on the basis of perceived fault or mistakes. मैं किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, मुझे शायद उसमें कुछ गलतियाँ नज़र आ रही है, तो ही मैं उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, राइट. तो अब हम देखते हैं कि किसने इंटरप्रेटिव और नेचुरलिस्टिक अप्रोच को क्रिटिसाइज़ किया है और किस तरीके से किया है. While criticism of naturalistic and interpretive approach.
We have discussed interpretive approach, it's more like subjective. We have discussed naturalistic approach, it's more like an observation. And now we are going to discuss criticism. While critics have pointing out what they regard as weakness in these qualitative perspective, उनको जो लूप होल नज़र आए उनको क्रिटिसाइज़ किया है. Bernstein suggest or criticize that subjective report may be incomplete and misleading. अब बर्नस्टाइन ये समझते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं कि सब्जेक्टिव, आपको मैंने बताया कि इंटरप्रेटिव हमारे पास सब्जेक्टिव होती है, राइट. तो यहाँ पे सब्जेक्टिव से मेरा मतलब इंटरप्रेटिव अप्रोच. बर्नस्टाइन यकीन करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं या सजेस्ट करते हैं कि सब्जेक्टिव रिपोर्ट क्या होती हैं, इनकम्प्लीट हो सकती है या इट कैन बी मिसलीडिंग एट टाइम्स, राइट. कैसे, अब वो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं. अब लेट्स सपोज आई मे बिलीव दैट द टीचर डज़ नॉट लाइक मी एंड देयरफॉर act as though the teacher does not like me. It's a kind of a self-fulfilling prophecy. There is no reality, कोई हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, बस मैंने ख़ुद से कह दिया कि वो मुझे पसंद नहीं करती. सब्जेक्टिविटी है ना, इसीलिए वो क्रिटिसाइज़ करते हैं. लेकिन हकीकत इसकी बरक्स हो सकती है, right. There can be a kind of a rigid dichotomy in between the prophecy and the reality. So that is why Bernstein criticized it, that there can be a kind of dichotomy or both kind of a contrast in between what we believe and what actually the reality is. अब हकीकत में हो सकता है कि वो टीचर मुझे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने ख़ुद से कह दिया कि वो मुझे पसंद नहीं करता. तो इसीलिए बर्नस्टाइन कहते हैं कि सब्जेक्टिव या इंटरप्रेटिव अप्रोच इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग हो सकती है एट टाइम्स, राइट. लेटर 1994 क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इंटरप्रेटिव एंड क्वालिटेटिव थीरीज फॉर देयर नैरोली माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. अब इसका क्या मतलब है कि इसमें हमारे पास सैम्पलिंग जो हमारे पास होती है बहुत कम होती है. हम अब एग्ज़ाम्पल को देखिए आप. रिसर्च एग्ज़ाम्पल से पहले आप लोग माइक्रो सोशियोलॉजी को याद रखिए कि इट्स अ स्मॉल स्केल सोशियोलॉजिकल एनालिसिस that studies the behavior of people in face-to-face social interaction and small group to understand what they do, say and even think, right. तो अब आप एग्ज़ाम्पल को देखें कि a researcher uses a sample of 100 families to examine the relationship between parents over 70 and their adult children. तो microsociology look at individual and how they interact with each other. It society को smaller scale पे examine करती है, right. माइक्रोसोशियोलॉजी. तो इसीलिए लेडर ने क्रिटिसाइज़ किया है क्वालिटेटिव थीरीज़ को. आगे चलते हैं कि क्रिटिसाइज अब नेचुरलिस्टिक रिसर्च में क्या मेरिट्स या डीमेरिट्स, यहाँ पे क्रिटिसिज्म की बात हो रही है तो वी विल फोकस मोर ऑन इट्स डीमेरिट्स, राइट. इसमें क्या लूप होल हो सकते हैं. तो सबसे पहले अगर आप देखें कि ऑब्ज़र्वर में इफ़ेक्ट बिहेवियर इफ़ डिटेक्टेड. अब अगर आप ख़ुद की एग्ज़ाम्पल लें, अगर आपको कोई देख रहा है तो शायद आप जिस तरह नेचुरली आप कोई काम करते हैं उसी तरीके से शायद आप ना कर पाए. तो इसमें क्या हो सकता है नेचुरलिस्टिक सोशल साइंस में, इसमें ये हो सकता है कि अगर जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अगर वो आपको डिटेक्ट करे तो शायद आप उसको जो नेचुरली वो इंसान या जिसको भी आप ऑब्ज़र्व कर रहे नेचुरली जिस तरह वो बिहेव करते तो शायद उसी तरीके से वो ना कर पाए, राइट. तो इफ़ेक्ट कर सकती है अगर आप ऑब्ज़र्वर को अगर आप डिटेक्ट करें, राइट. अब दूसरी देखें आपके वाइल ऑब्ज़र्विंग एनिमल
It may tell us about the action, but it cannot tell us why. अगर आप देखें, it's like naturalism is the belief that nothing exists, beyond the natural world. तो ये समझता है कि कोई चीज़ नेचुरल वर्ल्ड से बियॉन्ड कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट? तो अगर आप देखें, आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, लेट सपोज़ आप अगर एनिमल को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो आप देखें कि वो कोई हरकत कर रहा है, वो एनिमल। आपने ये देख तो लिया कि कोई एनिमल हरकत कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो उस हरकत करने की वजह क्या है। तो देयर इज़ नो कंट्रोल वेरिएबल। आपको तो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ जाती है, लेकिन आप ये नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस वक्त उसने ये बिहेव क्यों किया, ठीक है? तो इसी तरीके से नेचुरलिस्टिक अप्रोच को क्रिटिसाइज़ किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव्स, राइट? इसको हम डिफ़ाइन इस तरह करेंगे कि पोस्ट मॉडर्निज़म is a term that refers to new ways of thinking about thoughts, right? Traditional उससे निकल आए हैं new way of thought की तरफ, right? अब what postmodernist focus on, it focus more on pluralism, relativism, and reject any certain belief and absolute value. ये इस चीज़ को नेगेट करते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ सर्टन नहीं है, राइट? कोई भी हमारा बिलीव, कोई भी चीज़, नथिंग इज़ सर्टन। शायद एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। जो चीज़ आपके लिए एक जैसी हो, तो ज़रूरी नहीं है कि people living abroad in European countries, it is not necessarily important कि जो आप समझते हैं कि आपके लिए जैसा है तो उनके लिए भी वैसा होगा। तो they believe कि nothing is absolute, right? अब इसको किस तरह जस्टिफाई किया गया है, या किस तरह जेमिसन ने पोस्ट मॉडर्निज़म को डिफेंड किया है इन अ सेंस। Jamison is of the view that postmodernism does have several distinguishing hallmarks, right? अब सबसे पहले इसमें क्या है कि वैलोराइजेशन ऑफ डिफरेंस। इसका क्या मतलब है कि डिफरेंसेस, आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी, तो दोनों की ओपिनियन की वैल्यू है, राइट? अब आप कोई चीज़ कहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो कहेंगे वो एब्सोल्यूट होगा, बल्कि आप अपनी जगह ठीक, मैं अपनी जगह ठीक, ठीक है? तो दोनों तरफ डिफरेंसेस को वैल्यू देती हैं ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव है, राइट? फिर आती है कि देयर इज़ डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म, वैरायटी, यूनिकनेसनेस, सब्जेक्टिविटी एंड इंडिविजुअलिटी। अगर it focus more on subjectivity, individuality, pluralism, इन्हीं चीज़ों पे फोकस करती है। इन चीज़ों पे फोकस करने का मतलब कि इट नेगेट और इट डिसएग्री with something that is a concept of uh, uh, a concept of जो पॉजिटिविस्ट है, जो कहते हैं कि द ओनली वैलिड नॉलेज इन द वर्ल्ड इज़ द नॉलेज गेन थ्रू साइंटिफिक मेथड। तो इस पॉइंट को ये लोग नेगेट करते हैं, ये कंसेप्ट नेगेट करता है उसको, राइट? अब रिलेटिविज्म रादर देन एब्सोल्यूटिज्म in deciding what constitutes worthwhile knowledge, research, and their findings. Again, the same points. Everything is relative, nothing is permanent, or nothing is absolute. इसी चीज़ पे focus करती है, right? The view of knowledge as human, social construct. तो अगेन आप देखें कि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स को प्रेफरेंस दी गई है, नॉलेज ऑफ ह्यूमन को प्रेफरेंस दी गई है, राइट? कंपैरेटिव टू साइंटिफिक मेथड। Praying believes that postmodernism
is characterized by a revolt against thought control and cultural control, by an assertion. Assertion mean a confident statement of multiple forms of cultural expression. ये क्या करती है कि ये जो हमारी थॉट को कंट्रोल की गई है कि जो चीज़ साइंटिफिक तरीके से हासिल हो जाए, जो प्रॉपर एक सीक्वेंस जो लेबॉर्ट्री और उन्हीं तरीक़ों से जो नॉलेज दुनिया में आ जाए वो वैलिड है, बाकी कुछ वैलिड नहीं है। तो ये क्या करती है, ये दिस इज़ अ रिवोल्ट अगेंस्ट थॉट कंट्रोल। अगर आप यकीन करें कि चले उसने बोला है साइंटिफिकली प्रूफ है, तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी किल हो जाती है। यू डू नॉट कम अप विद योर ओन पॉइंट्स, यू जस्ट गो विद द फ्लो। आपको बताया गया है कि दिस इज़ साइंटिफिकली साइंटिफिकली ये चीज़ साबित हो गई है, तो आप एक्सेप्ट करते हैं। प्रेंग यकीन रखते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज़म क्या है, ये जो हमारी थॉट कंट्रोल है पॉजिटिविस्ट वाली पर्सपेक्टिव से, उसके खिलाफ दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ रिवोल्ट अगेंस्ट देम, राइट? It is an abandonment of certainty and a replacement of authority by multiple wise and negotiated meaning. अब अगेन आप देखें यहाँ पे कि रिप्लेसमेंट ऑफ अथॉरिटी का मतलब है कि एब्सोल्यूटिज़म को साइड लाइन कर दी गई है। किस चीज़ को वैल्यू दी गई है? मल्टीपल वाइस को, कि एक चीज़ के बारे में ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ साइंस ने प्रूव की हो, या जो सेंटर है हमारे पास, दैट कैन बी एनी थिंग इफ़ दैट इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अ सेंटर। तो ये क्या करते हैं, दे ये सेंटर को डी सेंटर कहते हैं। दे गिव प्रेफरेंस टू मल्टीपल वॉइसेस, राइट? आगे ये प्रिंग साहब यकीन रखते हैं कि इट इज़ अ रिकग्निशन ऑफ फेलिबलिज्म। अब what is fallibilism? It means that an empirical knowledge can be accepted even though they cannot be proved with certainty. तो ये क्या करती है, ये empirical knowledge को प्रेफरेंस दी गई है, रिकग्निशन उनको मिल गई कि हाइपोथेसिस कुछ भी हो सकता है। मैं अगर कुछ प्रेडिक्शन करूं, ज़रूरी है कि दैट मेक्स सेंस टू द रीडर। इंडिविजुअलिटी को यहाँ प्रेफरेंस दी गई है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिकग्निशन ऑफ फेलिबलिज्म। कंक्लूजन में हम यहाँ ये बयान कर सकते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म सपोर्ट्स द इंटरप्रेटिव पैराडाइम एंड इट आल्सो सपोर्ट क्रिटिकल थ्योरी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या करते हैं, ये इंटरप्रेटिव पैराडाइम को सपोर्ट करती है और साथ साथ में ये क्रिटिकल थ्योरी को सपोर्ट करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के बारे में मिशेल फूको एंड डेरिडा they argue that individual agency have prominence. Prominence mean importance. Individuals are not simply puppets of a given statement. People are diverse and different. अब ये क्या करते हैं कि they are not puppets. They are rational beings. They have thought. तो ये क्या करते हैं, ये इंडिविजुअलिटी को प्रेफरेंस देते हैं। ये कहते हैं कि पीपल आर डाइवर्स एंड डिफरेंट। अब दिस पॉइंट यहाँ पे इनका मतलब यही है कि अगर हम ख़ुद प्रैक्टिकल लाइफ से एग्ज़ाम्पल लें तो तो ये क्या कहते हैं कि डाइवर्स है पीपल, डिफरेंट है। और अगर आप देखें दो ही इंसान है। एमर्सन कहते हैं कि टू डिफरेंट माइंड्स द सेम वर्ल्ड इज़ अ हेल एंड अ हेवन। तो ये हो ही नहीं सकता है कि दो माइंड्स एक ही पॉइंट पे एग्री करे। वंस इन अ ब्लू मून इट हैपन्स, बट जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए भी अच्छी हो। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी रिलेटिव फिनोमेना, राइट? तो इसीलिए ये क्या करते हैं कि they consider, they give preference to individuality. They give preference to individual thoughts, right? They believe that there is no single essential meaning but many.
Practical application of post-structuralism is called deconstruction. अब deconstruction और post-structuralism का एक दूसरे में जो है ना बहुत गहरा कनेक्शन है, राइट? जो प्रैक्टिकलिटी है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को, उसको हम डिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं। और डिकन्स्ट्रक्शन किस चीज़ पे बिलीव करती है कि देयर इज़ नो ट्रूथ विच कैन बी कंसिडर फाइनल। कोई भी ऐसी हकीकत नहीं है जिसको हम फाइनल कंसिडर करें, ये डिकन्स्ट्रक्शनिस्ट कहते हैं, राइट? Basically, the theory of deconstruction that Derrida is trying to promote is theory which is the study of literature or philosophy, etc., etc. Which say that a piece of writing does not have just one meaning, as the meaning depends on the readers. That's true. The meaning, it vary from readers to reader. अगेन वही सेम बात आ जाती है कि देयर इज़ नो ट्रूथ विच कैन बी कंसिडर फाइनल बट इट वेरी फ्रॉम रीडर्स टू रीडर, राइट? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट in deconstruction is that it focus on play within the text. अब play within the text का मतलब क्या है कि ये हमारे पास सेंटर को डिसेंटर करती है. What does it mean? Like, let's suppose if we have writer as a source of meaning, so it is the center. In case if text is a source of meaning, so it is the center. And same is the case with structure and even the readers. If it is the source of meaning, so it is the center. और जब हमारे पास सेंटर एक ही हो तो we will have, the meaning will become static. अब अगर राइटर है, उसने कोई बुक लिखी है, तो अगर हम मतलब that should not be considered as final, right? We should look to it from different spectacles. ज़रूरी नहीं है कि उसने जो लिखा है that is the ultimate, but everything will be in the text, but there will be multiple voices. अब हम सेंटर को डिसेंटर करेंगे. रीडर ने जो बोला है that is that should not be considered final as per the deconstructionist, right? हम उसको सेंटर को डिसेंटर करते हैं. राइटर अगर सेंटर है तो हम उसको डिसेंटर करते हैं. रीडर्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रीड करेंगे and we will have multiple interpretations. As I've told you, for this दो इंडिविजुअल के लिए, एक के लिए दुनिया हेल हो सकती है और दूसरे के लिए हेवन हो सकता है. तो दुनिया एक ही चीज़ है, लेकिन एक की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, एक की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है दूसरे से. तो सेम इज़ द केस हियर. हमारे पास वी विल हैव द सेम टेक्स्ट, लेकिन इफ़ वी look to it from different spectacles, different minds अगर इसको read करेंगे तो this is quite obvious that we will have multiple voices. तो deconstructionists believe that कि हमें क्या कहते हैं, we should play within the text और हमें सेंटर को डिसेंटर करना चाहिए in order to remove the वो क्या करे कि फाइनल ना कंसिडर करे, उसको पॉजिटिविस्ट वाली फ़िलासफ़ी को ख़त्म करे. कोई चीज़ भी फाइनल नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सेंटर को हमें डिसेंटर करना चाहिए. नेक्स्ट है अब सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन एजुकेशनल रिसर्च. सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी को इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि इट इज़ अ सोशल रिसर्च. Objectivity is social research is the principle drawn from positivism. Objectivity है हमारे पास, हम किस अप्रोच को फॉलो करते हैं, पॉजिटिविस्ट अप्रोच को हम फॉलो करते हैं. The researcher task in this model is to uncover the reality without contaminating it in any way. हमें जो भी हमारा प्रोसेस है, वी शुड नॉट एम्प्योर इट शुड नॉट बी अनक्लियर बाय एडिंग आवर ओन पॉइंट्स. हमें क्या करना चाहिए, पर्सनल ओपिनियंस को हमें साइड पे रखनी चाहिए, राइट? इट प्रेजेंट अ स्टोरी फ्रॉम ऑल द एंगल्स इन अ सिस्टमेटिक वे.
साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं ऑब्जेक्टिविटी में. Its findings depend on the nature of what was studied rather than on the personality, beliefs and value of research. ये चीज़ें हम कहाँ करते हैं, बिलीफ वैल्यू, ये हम सब्जेक्टिविटी में करते हैं. ऑब्जेक्टिविटी में हम क्या करते हैं कि ये सब चीज़ें साइड पे रखते हैं. ये क्या, इट प्रेजेंट a story from all the angles in a scientific way, in a systematic way, right? Objectivity क्या है? Subjectivity क्या है? Subjectivity is generally conceptualized as the way research is influenced by the perspective, value and social experience and viewpoint of the research. इसमें हमारे पास क्या होता है कि पर्सनल ओपिनियन भी होते हैं, हमारा अपना सोशल एक्सपीरियंस भी होता है. जैसे कि आपने बायोग्राफीज़ देखे होंगे, अपनी लाइफ पे लिखते हैं, तो दैट इज़ सब्जेक्टिव. या हम किसी चीज़ पे कमेंट करते हैं, तो दैट इज़ सब्जेक्टिव, राइट? दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी. अच्छा, अब हेमसले बिलीव्स दैट ऑब्जेक्टिविटी कैन नॉट escape some subjectivity roots. अब यहाँ मसले क्या यकीन करते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन क्या है उसका, कि सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. अब ऑब्जेक्टिविटी कैसे कनेक्टेड है? अब इसमें ये और पॉइंट भी है कि इसमें इंटर सब्जेक्टिविटी आती है. इंटर कि ऑब्जेक्टिविटी को डिफ़ाइन किया गया है एज इंटर सब्जेक्टिविटी, और फिर इंटर सब्जेक्टिविटी को डिफ़ाइन किया है गया है रिस्जोर्ड ने कि ही इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन इंटर सब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी. अब किस तरह इसने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया है कि लेट्स सपोज इफ़ आई से आई फील हंग्री, तो दिस इज़ सब्जेक्टिव. सो आई ईट अ सैंडविच, दिस इज़ इंटर सब्जेक्टिव. तो इसी तरीके से ऑब्जेक्टिविटी को डिफ़ाइन किया गया है एज इंटर सब्जेक्टिविटी. वेल, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी कैसे डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे? अगर हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, कोई जजमेंट करते हैं, कोई इन्फरेंसेस करते हैं या कंक्लूजन पहले से मतलब माइंड में करते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पर्सनल थाट्स, वही इंडिविजुअलिटी आ जाती है कि इट टोटली रिलाई ऑन एन इंडिविजुअल. मैं अगर हाइपोथेसिस कर रहा हूँ तो ये मेरे माइंड से है ना, इंडिविजुअल की माइंड से आया है. तो इन दिस वे ऑब्जेक्टिविटी कैन नॉट एस्केप सम सब्जेक्टिविटी रूट्स, राइट? और same is the case with subjectivity, कि it cannot lay claim to being a privileged discourse without risking relativism. Most of the people you might agree with this point that an intention does not match actuality most of the time, right? इस पे तो I think most of the people might agree on this point. In order to have a good result, a reliable research, तो we should for a while हमें क्या करना चाहिए? सब्जेक्टिविटी को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए अगर रिसर्च को ज़्यादा रिलायबल करना चाहते हैं. तो ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इंटरकनेक्टेड है, राइट? अब आखिर में बाय कंसिडरिंग द नोशंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इन एजुकेशनल रिसर्च or any other research within the social science, it can be concluded that pure objectivity is something that is not achievable, right? Although our research should aim to be as important, our objectivity, यहाँ पे क्या है कि हमें ऑब्जेक्टिविटी क्या करना चाहिए कि हमारा एम होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करें, राइट? लेकिन सब्जेक्टिविटी से ये अलहदा नहीं हो सकती. बोथ ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड. और एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर एंड एक्नॉलेज ऑफ दैट आवर रिसर्च कैन नॉट हेल्प बट कंटेन सब्जेक्टिविटी, because we live in such a dynamic world and we are the center. हम सेंटर है
the world revolved around human, everything is for the humans, so we cannot, completely ignore subjectivity, right? So that is how subjectivity and objectivity, they are interrelated. They have some connection with each others, right? That's all about today's discussion. Thank you very much.